alayhi salam, we know he was a king. When he became to be a king, he went to Hebron, and he made Hebron as to be the capital of his kingdom. 7.5 years, he moved his capital from Hebron to Jerusalem, and he came here where we are, and he built his city, and he lived and died and buried within this building behind you. But when we do not have any evidence or a record to prove that this is his actual tomb, we use the word maqam. So it is a monument taken as the tomb of David, but this is a monument and not a tomb. दाऊद अलैहिस्सलाम जब पहले आए तो आप बादशाह थे, आपने हेब्रोन को अपना कैपिटल बनाया था, ये किंगडम का 7.5 साल तक वहाँ रहे, उसके बाद यहाँ आए और इसी को फिर अपना कैपिटल बना और यहीं पर रहे, बादशाह यहीं पे किया और यहीं आप वफात पाए और इसी में आपका मज़ार है। मगर ये कोई उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये यहीं पे हैं, तो इसलिए ये कहता है कि हम उनको मज़ार नहीं कहेंगे, हम इसको सिर्फ मकाम कहेंगे। मकाम दाऊद। The tomb, which is a monument, was founded by a Jewish rabbi. His name is Benjamin. वो Jewish place was for the hands of the Muslims till the first war, 1948. It became to be with the hands of the Yahudi. On the top there's a building of a mosque. You could see the minaret. Yeah. They honor the name to King David. And the tomb is right on the first floor. The mosque is on the second floor. It was a church, then converted into a mosque, but now it is a holy shrine for everybody, not a mosque. ऊपर का जो हिस्सा है सब मज़हब वाले वहाँ पे जा सकते हैं। We go inside, you see the monument taken as the tomb of Nabi Dawood, but this is a tradition. We will see it. You are allowed to take pictures, and then we go out by using the exit. Entrance. Do you see that? Oh. We've been driving for the last 20 minutes now. We're heading towards the Dead Sea. At the moment, we're now actually below sea level, and everyone's ears have popped. The Dead Sea is actually 400 meters below sea level, and it's the lowest point on Earth. So that'll be something to look forward to. At the moment, we're heading towards what they call the tomb of Hazrat Musa alayhi salam. There's signs coming up. That's the road where we just come from. Just made a big U-turn.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पैगंबर का है, जो डेड सी दरिया के बिल्कुल करीब है और जेरूसलम और जॉर्डन के दरमियान में है। यहाँ पर आलीशान आपका मज़ार मुक़द्दस है और यहाँ के पत्थर की ख़ुसूसियत आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है कि ये पत्थर यहाँ जलाते हैं तो लकड़ी की तरह जलता है और मुल्क में ले जाने के बाद फिर वो पत्थर नहीं जलता है। ये जलता हुआ आप लोग देख रहे हैं। हाँ। ये देखिए, ये देखिए मोहम्मद भाई खोकर पत्थर जलाते हुए नज़र आते हैं। और ये पत्थर लकड़ी की तरह ये भी जलता है, मगर मुल्क में ले जाने के बाद फिर ये पत्थर नहीं जलता। ये दूसरा तजर्बा घर जाने के बाद होगा, मगर अभी आप नज़रों से देख लीजिए कि ये पत्थर कैसे जल रहा। ये देखिए जल गया है थोड़ा सा। ये देखिए ये जलता हुआ नज़र आता है। रख दो, उसी पर रख दो। ये सब इंडिया के लोग बैठे हुए हैं और पत्थर जला करके रिसर्च कर रहे हैं। जिसमें शेखुल इस्लाम भी मौजूद है। देखिए ये पत्थर जल चुका है, ये पत्थर जल चुका है। देखिए, हाँ पत्थर जल चुका।
ये पत्थर जिस तरफ आग है देखिए सिया होता चला जा रहा है। नहीं वही चलिए नीचे से। That's the Dead Sea you can see before you there. The Dead Sea is 47 miles long by 10 miles wide. We're at the top end of it at the moment, the northern end. The Dead Sea contains 6 times more salt than an ordinary ocean, and it's the sulfur in there which helps helps to cure rheumatism. Because of the salt, it actually floated in the water. All right. Let it dry now. Okay, even though you can't see the salt, all the water evaporated. You can feel, you can feel the salt on his skin. All the salt's been left behind, all the water evaporated. ले तो फरीद ये बाटला पर अंदर से ज़्यादा पड़ेगा यहाँ फरीद। अरे बहुत नमक है। हाँ ना सके कड़वा भी है। कड़वा भी है। पूरा समुंदर है। गेट आओ जी। अरे
आपने कहा साल तक कंटिन्यूस हुए रहते। ये वाकया 34 शताब्दी 5वीं शताब्दी में रहा है। इसमें बाद में आया दाखिल हुई, से मौत हुई, बाद में मौत हो गया। बाद में जो बादशाह दोबारा आया यहाँ पर ये आए तो दाखिल हुए, फिर उनको मौत हुई आगे। कुत्ते की हड्डी भी अंदर था। हाँ सर, एक कुत्ता भी सर। कहर जो है इनकी तादाद के मुताल्लिक़ भी इख्तिलाफ है। कुरान करीम में भी उस इख्तिलाफ का ज़िक्र है। ज़्यादा मशहूर ये है कि ये 7 थे, वरना 8 भी हैं, 5 भी हैं। और ये उस वक्त बहुत ही मसीही मशरब के थे, यानी सही मसलब के मानने वाले थे, दीन इलाही के मानने वाले थे। तो इनके बादशाह ने इनको बुत को पूजने को मजबूर जब करना चाहा तो ये शहर के बाहर चले गए और जाकर के एक गार के अंदर ये छुप गए। इनके नाम में भी इख्तिलाफ है कि इनका नाम क्या था। लफ्ज़ों के इख्तिलाफात मिलते हैं। हम तक जो रवायत पहुंची है उनमें 7 नाम ये हैं: मकसलमीना, यमलीखा, मरतूनुस, बैनूनुस, सारीनूनुस, जूनवानिस, कश फी तब्तनूनुस। ये 7 नाम होते हैं। और उनके कुत्ते का नाम जो कुत्ते उनके साथ हो गया था उसको कितमीर कहते हैं। अब इसमें लफ्ज़ों का कुछ फ़र्क है, ज़रूर कहीं कहीं मिलता है कि इस नाम की जगह ये है ये, मगर मकसलमीना, यमलीखा ये इसमें इख्तिलाफ नहीं मिलता। और तक़रीबन 309 साल तक ये आराम करते रहे। इस सिलसिले में एक तो ये कि गार में गए तो वहाँ तक किसी की पहुँच नहीं हुई, और एक ये है कि वो सोए तो उनको मुर्दा समझ करके किसी ने ख्याल नहीं किया। फिर रब तबारक व तआला की तरफ से एक गार की शक्ल बन गई और उसमें उनकी हिफाजत हो गई। और कुत्ता जो है वो उस गार के मुंह के ऊपर कुरान करीम के अंदर है, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई है फिल वसीद, यानी अपने पैर पर वो खड़ा। ये और इतना बरस गुजर जाने के बाद फिर जब आँख खुली तो इनको ये पता ही नहीं चला कि हम एक रात सोए कि आधे दिन सोए। भूख लगी हुई थी तो इन्होंने पैसे दिए और ये जाने वाले अमरीका ही थे कि बाज़ार से जाकर कुछ ख़रीद करके लाओ। जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग उनको हैरत से देखते रहे कि ये तो सिक्का बड़ा पुराना, ये कहाँ से? हुकूमतें बदल गई, सब कुछ मामलात ख़त्म हो गए, ये सिक्का तो बहुत सदियों पहले का है। और उस वक्त कोई बादशाह दूसरा था तो बादशाह तक ये ख़बर पहुँचाई गई कि ये तो बड़ा कदीम सिक्का इनके पास है, ये क्या चीज़ है। फिर ये लोग जब हाजिर किए कि उन्होंने पूरी बातें बताई कि ऐसे ऐसे सूरत हाल। और थे ये लोग बहुत ही सही और दीन मसीही, दीन इलाही पर ही पर अमल थे और उस दौर के सालिहीन में से। अब तो ये है कि इनके नाम में भी इतनी बरकतें हैं कि अगर इनका नाम कहीं लिख करके टांग ऐसे ही दिया जाता है तो आफतों से, मुसीबतों से वो घर बचा रहता है। और इनके नाम का तोशे की भी लोग मन्नत करते हैं और उसमें एक अजीब चीज़ है जो हैरत कर में डाल देने वाली चीज़ है
वो ये कि आप इन कोई मकसद हो, कोई मुराद हो और कहें कि हमारा ये मकसद पूरा हो जाए तो हम अशाब कहफ का तोशा मनाएंगे, और उसके बाद जब मकसद पूरा हो जाए तो उसमें वो तोशा आप तैयार करें और ऐसे 11 मुत्तकी लोगों को वो पेश करें, वो 11 मुत्तकी जो स्मोकिंग के आदी ना हो, यानी उस वक्त के दौर में हुक्का ही था तो हुक्का पीने के वो आदी ना हो। तो उससे ये समझ में आता है कि चूँकि उस दौर में हुक्का ही था इसलिए उससे रिकॉर्ड, और इस दौर में तो स्मोकिंग के बहुत दूसरे ज़रा हैं, तो इस तरह का कोई भी ज़रिया कोई हल्की फुल्की नशा कभी इस्तेमाल करने के उनकी आदत ना हो, ऐसे की दावत दें, और उसके साथ साथ किसी काले कुत्ते को भी दावत दें, और काले कुत्ते को दावत इस तरह से दें कि उससे कहें कि कितमीर फलां दिन फलां वक्त मेरे जहाँ तेरी दावत है, तो वो कहीं भी कुत्ता होगा वो उस वक्त उस मिनट में उस दिन आपके घर पहुँचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख़ास चीज़ है, अजीब चीज़ है, और ये सब कुदरत की निशानियाँ हैं। अच्छा, और ये रहा जो हड्डी वगैरह देख रहे हैं, ये सब बातें समझ से बाहर है, समझा। ये तो है, ठीक है कि रवायत ऐसी कि उनकी वफ़ात हो गई, वो कहीं दफन कर दिए, उसका कुछ पता नहीं कि फिर ये तो गार में आए थे ना छुपने के लिए, वो बात अलग थी, मगर हड्डियाँ कहाँ, और ऐसे बुज़ुर्गों को जो दफन कर दिया जाता है तो उसकी हड्डियों की इस तरह से बेहुरमती नहीं की जाती। एक बात तो ये समझ में नहीं आती, और दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी भी रवायतें हैं कि वो उस गार में अब भी आराम फरमा रहे हैं और कुत्ता अब भी ऐसे दिखाए, और वो वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं हो रही, जितनी आसानी से आप यहाँ आ गए। अच्छा, ये भी इख्तिलाफ है कि असल क्या है, खुद इसमें भी लिखा हुआ इसके ये है कि सीरिया में है कि कहीं और है, 3-4 जगह का नाम लिख दिया। तो वाक़ई अपनी जगह पर सही है, मगर वो वाक़ई किस जगह पर हुआ ये खुदा की तरफ। चलो आजकल क्या है, हम कल आए जितना कर रहे हैं यहाँ से आ गया सामने खुले रही ना से सुन रहे सिक्का जो देखा लोगों ने धुतला गया बादशाह, तब तक बादशाह बदल गई। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जिसको कहते हैं असहाब कहफ। ये जगह सीरिया में है।
बोलो बाबा साहब का हुक्म है बाबू काटू बोला मैं डरू करी पड़े बाबू खा दो क्या क्या बोले लो इधर This is the leader of this group, Mr. Qasim Bhai. बोलो પછી ઉતારતા નહીં યાર अरे मामत से यार मजा आई गया भाई 15 दिन क्या हाजी हाजी वो हाजी क्या ऑर्डर है वो हाजी देखा देखा मेरा है यार वालेकुम सलाम अच्छी
भाई पार्टनर कौन है दूसरा छिलना सीधा दुआ करोगे आवा प्रोग्राम આપણો हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह और जानकारी मांगी बस आवा तो हाँ बनाओ गीत कभी गाजी सर गए वाह Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani भाई पासपोर्ट ला दे बैंक ये जो कौन सा अब आपके सामने सूर्या एयरपोर्ट पर शेख तहमीना बानो बिनते अब्दुल समद नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने जा रही है। आप हजरात दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। नाज शरीफ समाअत फरमाइए। ले पकड़ पकड़ के पढ़ वो ऊपर चलो इस्मान लिखते हैं जो भी हो चल अस्सलाम वालेकुम। क्या यहाँ चलने हाँ लो तुम पकड़ो। चलने वो पकड़ा क्यों पढ़ नहीं मैं नहीं पकड़ू। वो टैप खराब होती पढ़ने कहीं नहीं है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बातें सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए। है नजर में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं,
ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ला